am Santosh Kumar Bisen. Today I am going to deliver a short lecture in a blended learning mode. The blended learning mode means we will use some traditional methods along with the mingling with the online tools. At this moment, I am delivering on the online mode. So I am Santosh Kumar Bisen. I am the PGT Biology of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kabirdham, Chhattisgarh. So first of all, I am thankful to entire team of NIOS, to M. Prabha, and all the respected officers of Navodaya Vidyalaya Samiti. So let's start our lesson chapter. Today I am going to deliver the major chapter is major part is that is a structure of DNA, and basically I will concentrate myself on the structure of DNA only. So now I am sharing the content. Okay. So today we will see the structure of DNA. The structure of DNA. When you see the structure of DNA, it looks like somewhat the spiral staircase. Just see this diagram. Diagram is there in front of you, in front of the screen. There is a diagram, and this diagram looks like more identical about the stairs. See, this is the staircase, and another strand this, but it looks like when I draw the line over this diagram, it looks like that both the strands are crossing. Sir, इसको slide show में कर दीजिए. Yes. Okay. It looks like that both the strands are crossing to each other, but it is not true. To understand the DNA structure, better to just memorize the structure of the राउंड शेप. इस घर में जो होती है ना गोल कलर गोल एक सीढ़ी होती है, और जब हम सीढ़ी से चलते हैं, स्लाइड के ऊपर जो छोटा स्क्रीन है उसको क्लोज कर दीजिए. दिस वन. ओके फाइन. इसको बंद कर दूं? हाँ यस, उसको बंद कर दीजिए. ओके ओके, कंटिन्यू. So this is the structure of DNA, and basically today we will I will just conclude the chapter, and I will teach only the structure of DNA, in which we will see slightly how this DNA molecule composed of, and then I will teach the structure of DNA in detail. But आपको पता है कि ये चैप्टर जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सभी सिलेबस में है, और इस सिलेबस में इस चैप्टर में काफी और सब टॉपिक भी हैं, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, व्हाई दिस डीएनए इज कंसिडर एज जेनेटिक मटेरियल. और जब हम बोलते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं. एंड इन द चैप्टर in the later part of this chapter, the transcription and translation operands are there. But basically today we will learn about the DNA. तो जब DNA की बात करते हैं हम लोग, DNA its full form is wait. Okay. So okay. So first and foremost, I would like to say you why this DNA is considered as a genetic material. There are three properties. There are some criteria on the basis of which we can say the DNA is a genetic material. The first property is this one. The molecule or the DNA, it should be replicate. It should be replicate. I mean, it has
Wait. Okay. The molecule should be replicate or should be able to replicate. And replicate means the making of a replica or the two identical copy of DNA. Okay. So the molecule should be able to replicate. That molecule can be considered as genetic material. So DNA आपको पता है कि जब सेल डिवाइड होती है तो और जब रिप्लिकेशन होता है तो दो आइडेंटिकल रिप्लिका बनती है या कॉपी बनती है डीएनए की, जिसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। तो डीएनए ये कर सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए का, दैट इज द इट शुड बी एबल टू म्यूटेट, इट शुड बी able to undergo the mutation. And what kind of mutation? The mutation should be stable. इसका मतलब ये है कि जितना भी म्यूटेशन में चेंज होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में म्यूटेट होके और म्यूटेशन स्टेबल होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आप जानते हैं कि अगर म्यूटेशन के बारे में देखें तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर डेंजरस और हार्मफुल वी कैन से फॉर द ह्यूमन बीइंग, मगर कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जो यूजफुल हैं। और आज की डेट पे अगर हम बात करें, अगर इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का मेजर रीजन है वेरिएशन। इवोल्यूशन का मेजर रीजन है वेरिएशन, और जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से आता है? वो आता है म्यूटेशन से, है ना? ठीक है। So this is the second property of the DNA. The third property on the basis of which we can consider this DNA as the genetic material. Genetic material. Okay. So you know, आप जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इट गोज ऑन विद द एमआरएनए, और एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड होते हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होते हैं या डिकोड होते हैं, और डिकोड होने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और एक कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस, यू नो द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो ये राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहां एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कोड जो होते हैं डिकोड होते हैं। यहाँ डिकोड का मतलब ये है, डिकोड का मतलब ये है कि प्रोटीन स्पेशल सीक्वेंस जो होते हैं बनते हैं, और स्पेशल सीक्वेंस के स्पेशल कॉम्बिनेशन से अलग अलग एमिनो एसिड बनते हैं। और ये एमिनो एसिड जो होते हैं अलग तरह के, सब सेपरेट टाइप के या स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द मेजर फीचर of major criteria on the basis of which we can consider this DNA as a genetic material. मैं जल्दी से कुछ चीजें जो जरूरी है बताता हूं, उसके बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर पे चलेंगे। हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले जस्ट टॉक अबाउट द डिस्कवरीज। ओके, सो डिस्कवरीज, न्यूक्लिक एसिड जो है वो फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड और डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिशर। And Frederick Misser has separated or isolated, just extract this nucleic acid from the pus cell in 1869. And first time he just coined this material nucleic acid as nuclein. First पहले इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला था, इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता था। फर्स्ट टाइम द फ्रेडरिक मिशर हैज गिवन दिस नेम न्यूक्लिन। लेटर ऑन एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आल्टमैन। तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है दैट इज गिवन बाय द आल्टमैन, एंड इट वाज हैपेंड इन 1889। ओके, नेक्स्ट वन इज just talk about the occurrence where this DNA and RNA are occurred. So the location or the occurrence, DNA is always occurred in the nucleus in the eukaryotic cell. It also occurred in the cytoplasm of the prokaryotic cell, and in the organelle, two organelles, plastids or this mitochondria. Plastids और mitochondria आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा
कि ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद का एक डीएनए होता है, खुद का एक जेनेटिक सेटअप होता है, सभी ऑर्गेनेल में नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड इज द आरएनए and it is found there in the cytoplasm. Okay. So basically the RNA responsible for the protein synthesis. जब वो ट्रांसलेशन होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए ही पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ हमने बार बार बात की थी कि अगर एक कोई ये स्ट्रैंड है, सपोज कि ये आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से कनेक्ट होके बनता है. आपने नाम सुना होगा पॉलीमर. तो ये जो डीएनए है, दिस इज द पॉलीमर. एंड अभी जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये बोल सकते हैं कि दीज आर द मोनोमर. These are the monomer. So it is composed of so many monomers to make a long chain of a polymer. तो ये जो monomers हैं, ये है actually basically nucleic acid. Okay. So ये nucleic acid is composed of three things: pentose sugar, nitrogenous base, and the phosphoric acid. Okay. The second point or the second thing is, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है. मैं थोड़ा सा अभी हम जो पढ़ रहे थे, मैं कुछ स्लाइड्स का यूज कर रहा था. अब मैं थोड़ा सा इसको क्लासरूम इन पर्सन क्लास का टच देता हूं और सीधे मैं एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग के थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं. ठीक है. तो हम जो बात कर रहे थे कि one minute. ठीक है. Now we'll see the composition. Composition of nucleic acid. Okay. And the nucleic acid is composed of three things. Nucleic acid is composed of three things. First one is the pentose sugar. The second element of this nucleic acid is the nitrogen base. And the third unit of the nucleic acid is the phosphoric acid. Okay. Let's see the first one. First of all, I will tell you about the pentose sugar. Okay. First one is the pentose sugar. Pentose sugar. And there are two types of pentose sugar. First one is the ribose. राइबोस पहली है, ठीक है, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोस. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस. तो एक ये ऑक्सीजन है और इसमें पेंटागोनल एक स्ट्रक्चर होता है और एक रिंग फॉर्म होता है. हम जानते हैं कि ये पेंटोस शुगर है. पेंटोस मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 कार्बन एटम्स. ये भी 5 कार्बन एटम शुगर है और ये भी 5 कार्बन एटम शुगर है. अभी देखते हैं कि यहाँ 5 कार्बन एटम कहाँ आ रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज द कार्बन एटम नंबर 1, दिस इज द कार्बन एटम नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4. वेयर इज फिफ्थ वन? जबकि यहाँ हम बोल रहे हैं कि 5 कार्बन एटम है, यहाँ 4 ही दिखाई दे रहे हैं. अभी देखते हैं कहाँ है फिफ्थ वन, कहाँ है मैं बताता हूँ आपको. मगर सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिंग है, एक ऑक्सीजन एटम और 4 कार्बन एटम, ये मिलके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो दिख रहा है आपको. और इस तरह का रिंग कहलाता है
फ्यूरेनस रिंग। डीएनए मॉलिक्यूल कैसे उसका कंपोजिशन होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन होता है 3 चीजों से। पहला है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वन इज दैट इज द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। और दूसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। थर्ड वन इज द फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, मैंने आपको पेंटोस शुगर के बारे में बताया। अभी हम पेंटोस शुगर की बात कर रहे थे। पेंटोस शुगर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर। फर्स्ट वन इज द राइबोस and second one is the deoxyribose. Okay, so let's see the structure of ribose sugar. अभी हम शुगर पे, पेंटोस शुगर पे, राइबोस शुगर की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो रिंग बनती है राइबोस शुगर की, पेंटागोनल रिंग है। ओके, so this is the carbon number 1 2 3 4 and the 5th carbon number is there on the arm here. Okay, this is the carbon number 1 where exactly the nitrogen base attached. Okay, but first of all we see the structure, what kind of atoms are attached here. So this is the first atom of nitrogen carbon where the hydrogen, oxygen. Okay, this is the second one, hydrogen, the hydroxy OH group. This is the OH group, hydrogen OH group, just to maintain the valency here, the H. And third, fifth one, this is the CH2OH. Okay, this is the CH2OH, and this is the composition of ribose sugar. This is the composition of ribose sugar. Let's see the composition of deoxyribose. Deoxyribose sugar. यहां भी लगभग वही कंपोजिशन होगा और वैसे ही स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन एंड दिस इज द मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था जब ये रिंग कहलाती है फ्यूरोनोस रिंग। फ्यूरोनोस रिंग, और इस रिंग, फ्यूरोनोस रिंग में एक ऑक्सीजन एटम होता है प्लस 4 कार्बन एटम होते हैं। इस तरह के रिंग को फ्यूरोनोस रिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड जब हम डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सेम वैसी होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहां अंतर आ जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 5th कार्बन एटम, जहां पहले की तरह ही होगा CH2OH। अगर हम इसकी बात करें, देखो यहां अगर हम बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम यहाँ बात करें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन माइनस हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी। ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, यहाँ डीऑक्सीराइबोस कहलाता है ये। ठीक है, so these are the 2 ribose sugar. Now talk about the nitrogen bases. Nitrogen bases. Okay, so there are 2 types of nitrogen bases. First one is the purine and second one is the pyrimidine. Pyrimidines, purines and pyrimidines. You know, there are two pyrimidines and 2 purines and 3 pyrimidines. ठीक है, ये है adenine in the purines, adenine, and second one is the guanine, and the pyrimidines in the, that is the cytosine, thymine या थाइमीन, और थर्ड एक यहाँ आ गया यूरासिल। मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ आपको मैं। यूरासिल, ओके, थर्ड वन इज द यूरासिल। क्यों यूरासिल को मैं अलग से दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है डीएनए, तो डीएनए में
आप जानते हैं कि it usually the C and T is there, but in the RNA C तो वैसे ही होता है, but T is replaced by U, uracil. So later you will see in the next part of the topic. The second difference between the purines and pyrimidines is the purines are dicyclic molecule, but the pyrimidines are monocyclic molecule. साइक्लिक मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये है, see this is the purine. Purine is the dicyclic. There are two cycles. One cycle is this and second cycle is this. Here in the pyrimidine only one cycle is this. Okay, so yes, okay. Next one is the third difference is, यहाँ प्यूरिन्स में देखिए नाइट्रोजन एटम को जरा काउंट करिए, नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4. See, there are 4 nitrogen atoms, and what is the position of the nitrogen atoms? The first nitrogen atom, देखिए एक फर्स्ट एक कार्बन नंबर 1 पे होता है, दूसरा कार्बन नंबर 3rd पे होता है, लिखा हुआ है फर्स्ट 3rd and 7th. Third one is on the 7th carbon atom and last one is the 9th carbon atom, जो 9th carbon atom पे नाइट्रोजन. तो there are 4 nitrogen atoms and position of the all these 4 nitrogen atom is first, 3rd, 7th and 9th carbon atom. अगर हम इधर की ओर देखें, कहाँ आपके pyrimidines में, यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है, एक ये नाइट्रोजन एटम है और दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है. तो यहाँ पोजीशन क्या है, फर्स्ट कार्बन एटम पे है और दूसरा है नाइट्रोजन का 3rd कार्बन एटम पे है. एंड द अबाउट द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हियर द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनता है, द बॉन्ड इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड it forms in between the first carbon of the pentose sugar and 9th carbon of the purines. But here this bond is formed on the first carbon atom of pentose sugar and first position of the pyrimidines. Okay, now talk about the third one. अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देख लिया 3 मैंने यूनिट बताया था आपको मैंने, एक यूनिट होगी पेंटोस सुगर, एक होगी नाइट्रोजन बेस. नाउ टॉक अबाउट द फास्फोरिक एसिड. मैं फास्फोरिक एसिड को यही बता देता हूँ. फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो H3PO4 है, ठीक है. H3PO4, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो P यहां हो जाएगा O, H, OH, OH, P3PO4. और ये फास्फोरिक एसिड जो है, ये फास्फोरिक एसिड आपके इस वाले 5th कार्बन एटम पे ऐड होता है. यहाँ किस बॉन्ड से ऐड होता है वो आप जानते हैं कि ये यहाँ बॉन्ड बनता है, ये फास्फोरिक एसिड ये है, 5th का प्राइम एंड यहाँ हो जाएगा और ये बॉन्ड जो बनता है दिस इज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और यहाँ जो बॉन्ड है ये है दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं. हमारा मेजर टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बिना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको ये कॉम्बिनेशन पता ना हो, ठीक है. तो दिस इज द पेंटोस सुगर, दिस इज द पेंटोस सुगर. देयर इज ए प्रॉब्लम. Okay, this is the pentose sugar, and this is the nitrogenous base. Between the pentose sugar and nitrogenous base, there is a covalent bond that is the glycosidic bond. Here another bond is formed between the phosphate and pentose sugar, and you know this is the bond which is known as the phosphodiester bond. Let's just make a structure again. कैसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है क्विकली हम देख लेते हैं. ये आपकी हो गई ओके.
ये आपका फर्स्ट नंबर का, दिस इज द फर्स्ट नंबर कार्बन एटम, और जहां से नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, और ये आप नाइट्रोजन बेस जहां से ऐड होता है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके, एंड दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक और बॉन्ड बनता है, वो आपके यहां बनेगा, कहां, आपके 5th नंबर के कार्बन एटम पे, जहां आपका फॉस्फेट है। तो कैसे बॉन्ड बनता है देख लेते हैं। यहाँ आपका फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा POH OH OH, दिस इज द ऑक्सीजन। तो इसके बीच फास्फेट और सुगर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कब बनता है, when one atom of hydrogen of phosphate combines with OH group of the sugar. In this condition, one molecule of hydrogen eliminates. On elimination of the one molecule of hydrogen water, the specific bond is formed. This bond is known as phosphodiester bond. Okay. Two things are also there. दो वर्ड यहाँ एक नए आएंगे। एक नया आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियोसाइड है, और एक वर्ड आता है आपका न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है ना। न्यूक्लियोसाइड का अगर स्ट्रक्चर देखें, ये दिस इज द रिंग मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। सो इन द न्यूक्लियोसाइड only nitrogen bases and pentose sugar is there, but when you see the nucleotide, यहां तो है, ठीक है, एंड दिस इज द नाइट्रोजन। यहां एक चेंज मिलेगा आपको, यहां फास्फेट है, ओके। यहां अगर क्लियरली देखोगे, है ना, तो ये देखो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, there is no phosphate, only the sugar molecule, pentose sugar and the nitrogen base is there, but the nucleotide, phosphate, pentose sugar and the nitrogen. So this is the composition of nucleotide, and this is the composition of nucleoside. Now move on the major topic, that is the structure of DNA. Okay, the structure of DNA, when we say the structure of, when we talk about the structure of DNA, first of all we should know the some the historical background. We must know the historical background. Okay, so let's see some historical background about the DNA. DNA के बारे में कुछ historical background देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। तो फर्स्ट वन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, फेडरिक, एक साइंटिस्ट का नाम आता है फेडरिक मिशर, है ना, फेडरिक मिशर। फेडरिक मिशर, what is the contribution of Frederick Michel? Actually, DNA first time the DNA was reported. DNA was reported first time initially by the Frederick Michel, and he also said that the DNA is an acidic substance, है ना, first discovery.
द सेकेंड डिस्कवरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट द डीएनए, ये जो डीएनए जो टर्म है, डीएनए टर्म, दिस डीएनए टर्म गिवन बाय, है ना, टर्म गिवन बाय जैकरिस। इट वाज गिवन बाय जैकरिस, ठीक है। द थर्ड वन इज, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, और जिसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सब जानते हैं। तो जब भी डीएनए की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो नाम क्या है? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, okay. So this Watson double helical model, or the Watson double helical model, it was proposed or given by the Watson and Crick. थर्ड वन, फोर्थ वन, एक जो जानना जरूरी है डीएनए के बारे में, वो ये है कि डीएनए इज द पॉलीमर, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स ये किससे बनता है? इसकी बात अगर हम करें, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, अभी हमने देखा कि ये पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, तो नाइट्रोजन बेसिस में एडिन, ए टी एंड सी जी, साइटोसिन एंड गुआनाइन। और तीसरी चीज होती है आपकी, वो है फास्फोरस, ठीक है। नाउ लेट्स move on the next slide and we'll see now the detailed structure of the Watson and Crick. ये स्ट्रक्चर आपको बहुत डिटेल और सब तरह से इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि नीट से लेकर सारी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इस मॉडल पे कोई क्वेश्चन न पूछे जाए। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में हम देखते हैं। ओके, देयर आर सम लेग आ रहा है थोड़ा सा स्पीड के बारे में, तो स्पीड की वजह से लेग है, मगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम मैनुअली कैसे सीखें। बिसाइड प्लेसिंग ऑफ द रेडीमेड डायग्राम ऑफ दिस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, हियर आई विल ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम को ड्रॉ करके हम कैसे उसको स्टडी करते हैं वो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रेडीमेड डायग्राम लेने से ज्यादा अच्छा है कि हम इस तरह से उसको करें। तो मैं एक फिर से फ्रेश लेता हूं स्लाइड, ठीक है। सो डायग्राम मैं यहां ड्रा कर रहा हूं। ये एक स्ट्रैंड हो गया इसका, और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे कर सकते हैं ड्रॉ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये दिस इज द हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम देखते हैं इस मॉडल के बारे में। फर्स्ट थिंग, पहला फीचर इस डीएनए मॉडल का, ये डीएनए मॉडल होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज DSDNA। और जब DSDNA बोलते हैं तो ये DSDNA बात हो रही है नॉर्मल, जो DSDNA उसकी बात हो रही है। जनरली जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड ही होता है, मगर कुछ केसेस में एक्सेप्शन होते हैं जहां ये बात
नहीं होती है। और आगे की एक स्टडी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि रेयर है। और जहां जनरली हम मानते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो आप वहां डीएसआरएनए भी आगे देखेंगे, है ना। ये दोनों कंडीशन जो होती है एक्सेप्शनल है, रेयर होती है। नॉर्मली जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो in the normal condition the DNA is composed of two strands. Second one, the second feature of the DNA is each strand is made up of a chain of nucleotide. ये जो strand है ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन से बने होते हैं। तो each strand जो होता है it is composed of a chain of nucleotide. Okay, nucleotide. Third feature is, एक वर्ड अभी आपने सुना होगा कि तो both the strands, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, both the strands they arranged in the specific fashion that is known as anti-parallel. अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है ना। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि यहां आपका अगर ये 3, आप इसको 3 प्राइम एंड भी बोल सकते हैं, 3 डैश भी बोल सकते हैं, और तो यहां आपका होगा इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम एंड होगा या 5 डैश होगा। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो यहाँ ठीक अपोजिट होगा, 5 प्राइम एंड, और ये होगा 3 प्राइम एंड। ये क्यों होता है बच्चों, ये क्यों होता है मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूँ, फिर मैं इस स्लाइड में फिर से आऊंगा, ठीक है। ये इसलिए होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो क्यों बनता है। ये मैंने बताया कि ये ऐसे अगर इसका स्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ इसका 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ इसका 5 डैश है और इसका 3 प्राइम एंड है। क्यों स्ट्रक्चर इस ढंग से एंटी पैरेलल होता है, कैसे होता है, हमको छोटा सा इसका स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि ये अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर हम उसकी चेन क्या मॉलिक्यूल्स अगर का अरेंजमेंट देखें, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखें, तो मैं इसका देख लेता हूं सबसे पहले। ये फिरोनोस रिंग हो गई, ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। और इसके 5th आप ये देखेंगे, ये है आपका नाइट्रोजन फर्स्ट वाला, और ये है आपका फ्री कार्बन एटम जिसपे कि फास्फोरस होता है। दूसरा एटम अगर हम अरेंज करते हैं इस ढंग से, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का अरेंज करते हैं, तो आप देखिए यहाँ इसका फर्स्ट कार्बन एटम जिसपे कि नाइट्रोजन है ना। यहाँ इसका 3rd कार्बन एटम है जिसपे कि OH है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका OH ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरस से, ओके, ठीक है। ये फास्फोरस हो गया और ये इस ग्रुप का OH ग्रुप हो गया। इन दोनों के बीच जो है बॉन्ड बनेगा, और आप जानते हैं ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये होता है बॉन्ड आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इधर की ओर जो आपके नाइट्रोजन बेस से दूसरे तरफ दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं आपका हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, वैसे ही आगे इस तरह से चला जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल आपके बनते चले जाएंगे, लिंक होते जाएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ एक एंड पे यहाँ 5th नंबर का कार्बन एटम फ्री है, और यहाँ देखा जाए तो इसका भी वही देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ कार्बन एटम जो आपका जो हो जाएगा फ्री, कौन सा, यहाँ आपका OH ग्रुप है, तो यहाँ 3rd नंबर का कार्बन एटम फ्री है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ठीक है, 5 to 3 प्राइम एंड। अपोजिट अगर जाते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर उल्टा हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट जो पैरेलल उसके साथ जो दूसरा स्टैंड है वो इसके ठीक अपोजिट होगा, एंटी पैरेलल होगा। इसको अगर हम ड्रा करेंगे, इस वाले को अगर सिंगल में इस लाइन में ड्रा करूं मैं ऐसे, तो हो जाएगा 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड,
दूसरा वाला ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसका हम जो न्यूक्लियोटाइड है उल्टा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एंटी पैरेलल है ये। तो इसके अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर दूसरे वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को अगर देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन है, और इसके बीच में आपका जो है बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और आपका ये वाला यहाँ आप देखें तो ये वाला एंड फ्री, देखिए यहाँ फिफ्थ नंबर का जो कार्बन एटम है यहाँ फ्री है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। यहाँ देखिए उल्टा, यहाँ फिफ्थ इधर था, यहाँ फिफ्थ यहाँ है। ये थर्ड नंबर का जो कार्बन एटम है, तो ठीक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का ऐसे, ओके। आपका यहाँ फास्फोरस है ना, और ये आपका OH है। तो यहाँ इसके बीच आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका 1 2 3 4। तो इस तरफ से यहाँ अगर देखा जाए तो इस वाला जो कार्बन ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ थर्ड नंबर का कार्बन मॉलिक्यूल फ्री है, कार्बन एटम फ्री है। यहाँ फिफ्थ नंबर का कार्बन एटम फ्री है। अगर इसको हम ड्रा करते हैं, इसको अगर ऐसे ड्रा करते हैं तो ये बनेगा, यहाँ 3 प्राइम एंड हो गया और ये यहाँ 5th प्राइम एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट को बोला जाता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एंटी पैरेलल arrangement of both the strands. Okay, now come to the next point, next feature of the see। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर पे अगर एक इमेजिनरी अगर एक बीच में लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ऐसी होती नहीं है, तो इसको लाइन खींचते हैं तो इसका डायमीटर अगर हम देखेंगे, इसका डायमीटर अगर देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर जो है, इस स्ट्रैंड का, इस कॉइल का डायमीटर जो है, वो उसको मापने के लिए एक यूनिट होती है, उस यूनिट को बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या उस यूनिट को बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां, अंग्स, ANG, angstrom, okay, and it is denoted by A and this point, okay. So what is the value of this angstrom? It is equal to 100 million of a सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर का 100 मिलियन पार्ट होता है एक एंगस्ट्रम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट, फोर्थ पॉइंट, दिस यूनिट, तो अभी तक हम अब देख रहे थे कि स्ट्रक्चर जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, वो डबल हेलिकल मॉडल जो है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो एक बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया था, वो टोटली इमेजिनरी है। वो इसलिए कि हम उसकी यूनिट्स को मेजर कर सके। एंगस्ट्रम एक यूनिट है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम जो होता है, 1 सेंटीमीटर का 100 मिलियनथ जो पार्ट होता है, वो एक एंगस्ट्रम कहलाता है। अगर हम इस ढंग से इस डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अगर हम मेजर करें तो क्या अब उसका मेजरमेंट होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट का कितना उसमें बेस पेयर होंगे, उसकी लेंथ कैसी होगी, एक कॉइल की लेंथ कैसी होगी, एक कॉइल किसको कहते हैं, है ना, हाउ वी कैन कंसिडर द वन कॉइल इज देयर, ओके। तो यहाँ कॉइल की जब बात करेंगे तो मैं जरा सा एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ कि एक कॉइल डीएनए का कैसे होगा। ऐसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। तो एक कॉइल कैसे होगा, जैसे आप एक गोल वाली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, एक गोल वाली सीढ़ी पे, तो जहां आप हैं, एक सीढ़ी पे जहां आप हैं, और जब आप ऊपर चढ़ के दूसरी सीढ़ी पे पहुंचे आप,
तो ठीक उसी पॉइंट पे जहां अगर आप खड़े होते हैं, ये हो गया एक कॉइल। तो इस एक कॉइल का डिस्टेंस क्या होगा? एक कॉइल का डिस्टेंस क्या होगा? उसको मापने के लिए क्या होगा? हम सेंटीमीटर में नहीं माप सकते हैं, है ना? सेंटीमीटर में नहीं माप सकते हैं क्योंकि ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो मिलियन नैनो स्ट्रक्चर है। तो नैनो स्ट्रक्चर टू मेजर द units of the or the length of the nano structures, we cannot use the bigger unit like the centimeter and inch. तो ऐसी कंडीशन में हम जो जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिस यूनिट का यूज करते हैं, वो यूनिट है आपकी एंगस्ट्रम। तो हम फिर से जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे, ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक इसका अगर डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर जो है, अब आप डायमीटर समझ गए आप लोग? डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं, कहां से लेके कहां तक? ये डायमीटर यहां से लेके यहां तक का डायमीटर, ये डायमीटर कितना होगा? ये डायमीटर जो होगा एंगस्ट्रम में डायमीटर होगा ये 20 एंगस्ट्रम। ओके, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है? फिफ्थ वन, इसका आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट में दो नॉच हैं। एक नॉच ये है, ओके, और दूसरा नॉच ये है। इसकी अगर बात करें तो दूसरा नॉच आपका ये हो गया। एक कॉइल को अगर मेजर करना हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी ना किसी एक नॉच से दूसरे नॉच तक का डिस्टेंस देख लें। एक डिप्रेशन, या यहाँ एक नया वर्ड हम यूज कर सकते हैं, डिप्रेशन। दिस इज द स्मॉलर डिप्रेशन एंड दिस इज द ग्रेटर डिप्रेशन और द डीपर डिप्रेशन। तो या तो हम स्मॉलर डिप्रेशन से एक स्मॉलर डिप्रेशन, देखो बच्चों, ये या तो इससे इसका बीच का डिस्टेंस माप लें, या फिर एक जो डीपर डिस्टेंस है, या तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हम डिस्टेंस माप लें। बात एक ही है। इसको हम एक कॉइल बोलेंगे, दिस इज द वन कॉइल। इसको भी हम बोलेंगे दिस इज द वन कॉइल, या टर्न बोल सकते हैं। एक दूसरा वर्ड आप बोल सकते हैं टर्न। क्या बोल सकते हैं इसको? टर्न। ओके, इसको समझने के लिए मैं फिर से उधर दूसरे उस पर जाता हूं मैं, ठीक है? हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। मैं जल्दी से स्लाइड लेके मैं एक अभी मैं रफली बनाता हूं पिक्चर में, ठीक है? ओके, दूसरा स्टैंड ये है। ओके, मैं बहुत रफली बना रहा हूँ, जल्दी से बना दे रहा हूँ ताकि आपको हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट वाला जो पॉइंट मैं जिसकी बात कर रहा था वो है वन टर्न, है ना? अगला पॉइंट है वन टर्न। क्या होगा इसका, है ना? वन टर्न। तो वन टर्न का जो डिस्टेंस है वो हम आप बोलते हैं कि वन टर्न का डिस्टेंस जो है वो 34 डिग्री एंगस्ट्रम होगा। 34 एंगस्ट्रम होगा ये, ठीक है? ये होगा 34 एंगस्ट्रम। और 34 एंगस्ट्रम का मतलब है ये डिस्टेंस कौन सा होगा? ये 34 एंगस्ट्रम हो गया ये आपका। मैं किसी एक, या तो डीपर जो नॉच है इसको ले लेते हैं, डीपर नॉच टू डीपर नॉच, सॉरी डीपर नॉच ये हो जाएगा। ये डीपर नॉच ये है और एक दूसरी डीपर नॉच ये है, ठीक है? इस एक डीपर नॉच से लेके दूसरी डीपर नॉच, द डिस्टेंस बिटवीन द वन डीपर नॉच टू नेक्स्ट डीपर नॉच इज 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जब हम बेस फेयर काउंट करेंगे तो यहाँ हमको फिर से काम आएगा, ठीक है बच्चों? तो ये यहाँ मैं इसको नाम दे रहा था, मैंने दो वर्ड यूज किया, नॉच यूज किया, या आप इसको ग्रूव भी बोल सकते हैं, है ना? ग्रूव भी बोल सकते हैं, या तीसरा वर्ड आप इसको बोल सकते हैं डिप्रेशन, है ना? डिप्रेशन। ये तीनों वर्ड एक ही हैं। तो एक नॉच से लेके दूसरे नॉच तक का द डिस्टेंस बिटवीन द वन नॉच एंड सेकेंड नॉच इज 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम, ठीक है? नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्यूरिन्स। अरेंजमेंट ऑफ प्यूरिन्स, मैं एक एक स्लाइड में एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट
पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट है, ऑलवेज द प्यूरिन्स पेयर विद द पैरामिडीन्स। ऑलवेज प्यूरिन्स पेयर with pyrimidines. Okay, always purines pairs with pyrimidines. ठीक है, ठीक है. So purines means we are talking about the adenine and guanine, and pyrimidines means cytosine and thymine. Okay, always जब देखते हैं तो एक प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स का पेयर होता है ना, दोनों का साथ साथ नहीं हुआ इनका, है ना. तो यहाँ अगर हम देखेंगे एडिनाइन पेयर्स विथ थाइमाइन बाय डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड गुआनाइन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, next point of the or next is feature of the double strand is, that is very very important. मैं फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, दिस इज द सेकेंड. ओके, सो हमने डिस्टेंस देख लिया. अब हम देखते हैं बच्चों कि बेस पेयर कितने होते हैं. तो एक मान के चलिए कि एक आपकी डीपर डिप्रेशन से लेके दूसरे डीपर डिप्रेशन तक, है ना. इसका डिस्टेंस हमने देख लिया. इसका डिस्टेंस है 34, वन टर्न बोलते हैं 34. अभी हम देखते हैं कि इतने डिस्टेंस में कितने बेस पेयर होते हैं. तो ऑलवेज इतने डिस्टेंस में अगर हम देखेंगे, यहाँ इतने डिस्टेंस में 1 2 3 4 अगर हम देखेंगे तो ये पेयर्स का नंबर होता है, यहाँ 10 बेस पेयर होते हैं, है ना. ये 10 बेस पेयर होते हैं. ठीक है ना. एक डिप्रेशन से, मैं यहाँ उस डायग्राम को फिर से यूज करता हूँ, इस डायग्राम की बात कर रहा था मैं. ठीक है, अगर यहां से लेके अगर बेस पेयर का नंबर देखेंगे तो यहाँ 5 होंगे और यहाँ 5 होंगे. तो कुल मिला के यहाँ कितने होंगे बेस पेयर? 10 बेस पेयर होंगे. ठीक है, ये 10 बेस पेयर होंगे. और इनका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, उसी को आप टोटल लेंथ देखा था हमने कितना, टोटल लेके 34. तो इसके एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो ये निकलता है इन जो कंसेक्यूटिव बेस पेयर होते हैं, है ना. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक 10 है, इसका डिस्टेंस तो आपका हो गया आपका 34. ठीक है, मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बेस पेयर का डिस्टेंस क्या होगा, इस एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसको डिवाइड करते हैं 10 से, क्योंकि 10 बेस पेयर है. तो ये निकलता है 3.4 एंगस्ट्रॉम. 3.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, I think almost I have covered the structure. One or two things are I have to tell you about the DNA structure. The DNA or this helix, ये helix जो होता है always it turns in the fashion of clockwise. मतलब राइट हैंड साइड पे जनरली हमारा जो डीएनए का जो टर्निंग है वो है राइट हैंड साइड टर्न होता है ना. और इस अभी हमने जो एक चीज देखा था कि जो डिस्टेंस हमने देखा था, एक चीज फिर से ऐड कर दूं मैं, कि हमने जो डिस्टेंस निकाला 2 बेस पेयर का, मैं इसकी बात कर रहा था. ये जो 2 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है ना, इसका हम बोले थे कि 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है. और इस के लिए जो मेथड जो यूज होती है, वो मेथड जो कहलाती है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, वो कहलाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन. एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स बोलते हैं इसको. ठीक है, इस टेक्निक से वी कैन मेजर द
we can just find out the difference between the two consecutive base pair. Okay, I think my time is over, sir. Hello. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Santosh, sir.